Okay, so here our target is what we have to solve this integral I is equal to integration from a to b y dx and using numerical methods. Okay, that is our target, that is our claim. We have to solve this integral but using numerical methods. And previously सर अगर आप ये पूरा यूनिट देखते हो ना तो आपको समझ में आएगा कि ये यूनिट 3 एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है. फर्स्ट पार्ट आपका क्या था कि आपके पास एक टैबुलेटेड डाटा आ रहा था, है ना, विदाउट अ फंक्शन यू जस्ट हैव द टैबुलेटेड डाटा और द पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स in the form of x and y, in the form of x and xi and yi's, which satisfies the given function, but we don't know that function. And using this data, okay, we have to find the corresponding approximate polynomial or a function which satisfies this data. तो यहाँ से आपको फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना है. फंक्शन आपका क्या था, y. ओके, बट आप एग्जैक्ट y कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, जस्ट we have to find the approximate function which satisfies this given data. That is our chapter 1 I can say. उसमें कौन कौन से methods थे? In that we have covered the Lagrange's interpolation formula. Okay, this is our first method. Next is Newton forward difference formula. ठीक है, and next is Newton's backward difference formula. ठीक है, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर. फिर हमने क्या स्टार्ट किया, नाउ अवर सेकंड टारगेट इज व्हाट, वी हैव टू सॉल्व वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b y dx. ओके, बट न्यूमेरिकली, मतलब विदाउट सॉल्विंग दिस इंटीग्रल बाय आवर रेगुलर अप्रोच, जैसे आप रेगुलरली इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो. सो विदाउट सॉल्विंग दिस इंटीग्रल आपको न्यूमेरिकल मेथड से इस इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना. तो ये भी आंसर आपका अप्रोक्सीमेट होगा. ओके, एंड टू डू दैट इन अवर सिलेबस देयर आर 3 मेथड्स. वन इज ट्रेपेजॉइडल रूल, correct, that we have finished in last lecture, and next is Simpson. Okay, Simpson 1/3 and Simpson 3/8. Okay, so these are the 3 methods under this second chapter. Okay, so we quickly start. So this part is already over. Okay, so now the second method to solve the integral of this type, integration from a to b y dx, to find the value of this integral, and that method is Simpson's 1/3 rule. Okay, and how you define your integral, okay, using this Simpson 1/3 rule. So the formula is like this: h/3. Okay, h/3 ये आपका बाहर का कोएफिशिएंट है, इन ब्रैकेट just add first and last term y1, y0 and yn plus 2 times the even values. You have to remember like this only. So 2 times the even values and 4 times the remaining values. ठीक है, ऐसे याद रखो, वर्डिंग में याद रखो तो ये जल्दी हो जाएगा. ओके, फॉर्मूला क्या है, सिम्पसन्स 1/3 रूल इज डिफाइंड एज h/3. सारे क्वेश्चंस में फर्स्ट और लास्ट टर्म को सेपरेट ऐड करना ही है, तो दिस पार्ट इज फिक्स फॉर ऑल, है ना. ट्रेपेजॉइडल रूल में भी ये था. ठीक है, सो h/3 y0 plus yn plus 2 times even values y2, y4, y6 and so on, whatever the even values are there, and plus 4 times the remaining values. ठीक है, so this is your Simpson's 1/3 rule, and the third formula or the last formula under this case is Simpson's 3/8 rule, and this is defined as, तो यहाँ पे 1/3 लेते हो तो 1/3 से h को मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे अगर 3/8 लेते हो तो 3/8 से आपको h से मल्टीप्लाई करना है. So this implies so by Simpson's 3/8 rule, your integral I is equal to 3/8 into h in bracket y0, yn, first and last term. So here you have to consider 2 times the terms which are multiple by 3. Okay, multiple of 3 terms which are the multiple of 3. So 2 times terms multiple of 3 plus 3 times, ये कोएफिशिएंट अलग अलग है. Okay, so these coefficients are different. 3 times the remaining. ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं कि क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं. 3 times the remaining. Okay, first and last term, first plus 2 times the terms which are in multiple of 3, correct, and plus 3 times the remaining. And for Simpson's 1/3 is 2 times even plus 4 times remaining, 2 4 2 3, like this. Okay, and there are some remarks, but मतलब एग्जाम्पल में डायरेक्टली इंटरवल ही आपको गिवन रहते हैं कि कितने इंटरवल में आपको डिवाइड करना है, तो इसलिए इन रिमार्क्स का कुछ ज़्यादा यूज नहीं होगा as far as our examples are concerned. But in general, to apply the Simpson's 1/3 rule, the interval must be divided, okay, into even number of intervals, even number of sub intervals. Okay, Simpsons में
जब भी आपको इंटरवल को डिवाइड करें, क्योंकि डिवाइडिंग का पार्ट आपके ऊपर डिपेंड है, बट जनरली एग्जाम्पल में वो मेंशन नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ इंटरवल में आपको वो पार्ट डिवाइड करना है. सो दैट इज ऑलरेडी देयर इन द एग्जाम्पल. But in general, if you want to apply Simpson's 1/3 rule, then interval must be divided into even number of intervals. Okay, even number of intervals मतलब जो लास्ट पॉइंट जो yn आपका होता है ना, ये n हमेशा even आता है. कौन से केस में n कौन से केस में even आता है? When you consider the Simpson's 1/3. Okay, and now the next rule is to apply the Simpson's 3/8 rule. The interval must be divided into a sub intervals which are multiple of 3. तो इस केस में जो आपका लास्ट पॉइंट आता है n, okay, so this n must be the multiple of 3, so that n may takes values 3, 6, 9, okay, 12 and so on, okay, 15 and so on, multiple of 3. Okay, so these are to the standard result as far as Simpson's 1/3 and 3/8 rule are concerned. Okay, so let's take some examples. So we already covered this one example on trapezoidal rule, so we'll not repeat this. Okay, तो इसमें h आपको गिवन था, है ना. आई जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस फर्स्ट एग्जांपल. ट्रेपेजॉइडल रूल क्या था, इसमें h आपको गिवन है. h गिवन है तो आपको समझ में आ रहा है कि इंटरवल का आपको कैसे डिवाइड करना है. फर्स्ट पॉइंट आपको लेना है 1 फ्रॉम दिस इंटरवल. ओके, व्हाट यू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट पॉइंट इज 1 एंड लास्ट पॉइंट इज 1, एंड नाउ यू हैव टू ऐड the difference 0.1. okay, starting from this x naught. So 0 plus 0.1 is 0.1. okay, 0.1 plus 0.1 is 0.2 plus 0.1 is 0.3. continue this up to this 1. okay, and from this you will understand the number of intervals, and corresponding to each x 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 we have to find the y. y कैलकुलेट करने के लिए आपको ये गिवन फंक्शन यूज करना है. ठीक है, तो ये कैल्शियम आप कैलकुलेशन करो. जस्ट रिमेंबर व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस y, फिक्स योर कैलकुलेशन अप टू 4 डिजिट. ठीक है, and then you will get the values of y0, y1. first value हमेशा y0 होगी, y2, y3 up to y10. so here we have divided the given interval. Here we divide the given interval 0 to 1 into how many sub intervals? 10 sub intervals. लास्ट में जिस नंबर पे एंड हो रहा है उतने वहाँ पे क्या आ रहे हैं? सब इंटरवल. सब इंटरवल का मीनिंग क्या होता है? सब इंटरवल मीन्स फर्स्ट इंटरवल आपकी क्या है? 0 to y0 to y1. y0 to y1, सॉरी इंटरवल मतलब x में आता है, सॉरी 0 to 0.1 दिस इज योर फर्स्ट इंटरवल. नेक्स्ट इज 0.1 to 0.2 इज योर सेकंड इंटरवल. एंड कंटिन्यू करो, लास्ट में आपको 0.9 to 1.0 दिस इज योर लास्ट इंटरवल. सो टोटल देयर आर 10 सब इंटरवल्स. और फिर आपका फॉर्मूला क्या है? ट्रेपेजॉइडल रूल में h/2 सिम्पसन्स ओके सॉरी हाँ ट्रेपेजॉइडल रूल में h/2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड 2 टाइम्स इवन नंबर. तो ये सिंपल याद रखने के लिए, सॉरी रिमेनिंग, इवन की जरूरत नहीं है, रिमेनिंग. तो ट्रेपेजॉइडल रूल में जस्ट ऐड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड प्लस 2 टाइम्स द रिमेनिंग नंबर. ठीक है, तो बस ये वैल्यूज कॉपी पेस्ट करो एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर. सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. ठीक है, इजी टॉपिक है ये. सो नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. यूज सिम्पसन्स 1/3 रूल to obtain integration from 0 to pi/2 sin x upon x dx by dividing the interval into 4 parts. ठीक है, तो कभी कभी इस मतलब आप यहाँ पे बस फॉर्मेट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे रूल कुछ भी आने दो, सिम्पसन्स आने दो, ट्रेपेजॉइडल रूल आने दो, एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको वो टेबल या टेबुलेटेड डाटा का जो टेबल है वो आपको अच्छे से फॉर्म करना है. एंड टू कंस्ट्रक्ट दैट टेबल ओके यू मस्ट हैव द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ सब इंटरवल 2 पार्ट में गिवन होता है. एक तो डायरेक्टली आपको h की वैल्यू गिवन होगी, टेक h एज से 0.1 एंड 0.2 एंड देन जस्ट डिवाइड दिस गिवन इंटरवल. ठीक है, सेकंड अप्रोच क्या होगा, आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ इंटरवल्स गिवन रहेंगे. सो डिवाइड दिस इनटू बाय डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट्स, बाय डिवाइडिंग इनटू 6 पार्ट्स, बाय डिवाइडिंग इनटू 7 पार्ट्स एंड सो ऑन. तो थ्योरेटिकल वे में भी गिवन हो सकता है, लाइक से डिवाइडिंग इनटू 4 सब इंटरवल, 6 सब इंटरवल, 7 सब इंटरवल, या डायरेक्टली आपको h गिवन होगा. ठीक है, यही तो पॉसिबिलिटीज है. इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला अंडर दिस पार्ट. ओके, ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स. ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में एग्जांपल आता है कि बाय डिवाइडिंग इनटू 4 सब इंटरवल्स, 6 सब इंटरवल्स, 7 सब इंटरवल्स, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, यूजिंग दिस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h. ठीक है, तो कैसे भी करके आपको पहले क्या चाहिए, h चाहिए. ठीक है, सो हाउ यू कैलकुलेट h व्हेन वी हैव गिवन दैट वी हैव टू डिवाइड दिस गिवन इंटरवल इनटू 4 पार्ट्स और 4 सब इंटरवल. तो उसके लिए h कैसे कैलकुलेट करना है, तो h का फॉर्मूला क्या आता है. ओके, फंक्शन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, दिस इज योर गिवन फंक्शन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट h फॉर दिस केस. तो h कैसे कैलकुलेट करना है, h का फॉर्मूला ये मैंने यहाँ पे दिया.
एच क्या होता है हमेशा, ओके, दिस इज योर गिवन इंटीग्रेशन की इंटरवल क्या है, a to b, ठीक है। सो फर्स्ट लिमिट इज 0, सेकंड लिमिट इज पाई बाय 2, तो आपको करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो दैट डिफरेंस इज पाई बाय 2 माइनस 0 एंड देन डिवाइड अपॉन दी n, यानी मतलब जितने इंटरवल में आपको डिवाइड करना है वो n, तो यहाँ पे आपको 4 इंटरवल में डिवाइड करना है, तो नीचे क्या आएगा 4, ठीक है। सो h इज इक्वल टू b माइनस a डिफरेंस ऑफ दिस लिमिट्स अपॉन n इज द नंबर ऑफ इंटरवल्स इन विच यू वांट टू डिवाइड द गिवन इंटरवल। सो हियर इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज यू विल गेट पाई बाय 8, तो h की वैल्यू क्या है, पाई बाय 8, तो अभी आप इजीली कंसिडर कर सकते हो, है ना। सो टेबल में फर्स्ट वैल्यू आएगी 0, मतलब फर्स्ट लिमिट, इसमें पाई बाय 8 ऐड करो, 0 प्लस पाई बाय 8 इज पाई बाय 8, इसमें फिर से पाई बाय 8 ऐड करो, यू विल गेट पाई बाय 4, इसमें फिर से पाई बाय 8 ऐड करो, यू विल गेट 3 पाई बाय 8, इसमें फिर से पाई बाय 8 ऐड करो, यू विल गेट पाई बाय 2, ठीक है। या सिंपली पाई बाय 8, दिस इज 2 पाई बाय 8, दिस इज 3 पाई बाय 8, दिस इज 4 पाई बाय 8, बट जब आप 4 पाई बाय 8 पे आते हो, 4 पाई बाय 8 इज नथिंग बट पाई बाय 2, तो आपको यहीं पे स्टॉप करना है क्योंकि ये आपका एंड पॉइंट है, पाई बाय 2 आपका एंड पॉइंट है, ओके। एंड देन सो नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ x, x के सारे वैल्यूज आपके पास आ गए, ओके। एंड फ्रॉम दिस, just 1 minute, एंड फ्रॉम दिस नाउ यू हैव टू कैलकुलेट y, ओके। हाँ, तो फंक्शन आपके पास है, फंक्शन इज sin x अपॉन x, ओके। कैल्सियम में बस x इक्वल टू 0 पुट करो, सो दिस इज सो sin 0 अपॉन 0, ये आपको एल हॉस्पिटल रूल से कैलकुलेट करना होगा। सो बाय एल हॉस्पिटल रूल दिस वैल्यू इज 0 बिकॉज साइन का डेरिवेटिव cos, I think I made some mistake here. I think this value must be 1. ठीक है, okay. I have to check this because what is the value of sin x upon x when x tends to 0? When x tends to 0, sin x का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x, करेक्ट, यानी x का 1, sin x का डेरिवेटिव cos x and x का 1. If I put x equal to 0, cos 0 is 1. So I think this value must be 1. Okay, but I will check this. Next is what, pi by 8. Okay, pi by 8 पे put करो कैल्सियम में, you will get this. ये सारा रेडियन में करना है कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट पुट करो pi by 4, you will get this. 3 pi by 8 पुट करो, you will get this. pi by 2 पुट करो, you will get this. Okay, please just verify these answers. ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है, आई हैवंट वेरीफाइड दिस टेबल, ओके, तो एक बार वेरीफाई करो, ठीक है। एंड नाउ बाय यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है, क्या आपका फॉर्मूला क्या है, 1/3 रूल का, सिम्पसन्स 1/3 रूल इज फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ओके। तो उसके लिए आप अभी इसके बाद क्या करना है, दिस फर्स्ट पॉइंट इज y0, नाउ दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज y3, this is y4, ठीक है। सो y0 इज द फर्स्ट पॉइंट, y4 इज द लास्ट पॉइंट, और इन बिटवीन क्या है, y1, y2 एंड y3। चलो देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज y0, सेकंड पॉइंट इज yn, और फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, उसके बाद 2 टाइम्स इवन वैल्यूज एंड 4 टाइम्स रिमेनिंग वैल्यूज, ठीक है। तो कंसिडर करो, तो क्या होगा, h/3, बट h की वैल्यू क्या है, पाई बाय 8, अभी हमने कैलकुलेट किया था, h इज पाई बाय 8, सो दिस बिकम 24, ओके। सो करेक्ट किया है मैंने बाद में, चलो नो प्रॉब्लम। सो y0 इज 1, है ना, फर्स्ट वैल्यू, yn लास्ट वैल्यू, फिर 2 टाइम्स, तो ये था y0, ये था y1, 2 टाइम्स इवन वैल्यूज, 2 टाइम्स इवन वैल्यूज क्या थे, आई थिंक y0 और y1 में इवन बस एक ही है, y2, ठीक है। एंड 4 टाइम्स द रिमेनिंग नंबर, क्या रिमेनिंग है फिर, सॉरी ये y4 है, रिमेनिंग क्या है, y1 एंड y3, ठीक है। सो इफ यू ऐड ऑल दिस फ्रॉम कैलकुलेटर, यू विल गेट द आंसर एज 1.307929, बट आपको 4 डिजिट तक ही लिखना है, ये जैसे बुक में था वैसे मैंने दिया है, ओके। आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क इन दैट, ठीक है। एंड नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे ट्रेपेजॉइडल है वैसे ही सिम्पसन के क्वेश्चन है। इसमें बस इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको टेबल अच्छे से क्रिएट करना है, एंड टेबल क्रिएट करने के लिए ये फोकस, मतलब ये ध्यान में रखो कि h गिवन है कि नहीं। इफ h इज नॉट गिवन, देन यू हैव टू कैलकुलेट h यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस इज द ओनली पार्ट, ओके। नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल। सो क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल to obtain the integration from 0 to 1 upon 1 plus x square dx by taking h is equal to 1/6, ठीक है। या तो इस वर्ड में गिवन होगा, या आपको इस फॉर्म में भी आता है, बाय डिवाइडिंग, जनरली थ्योरेटिकल आता है, बाय डिवाइडिंग इनटू 2
बाय डिवाइडिंग इनटू 6 सब इंटरवल, ऐसा एग्जांपल में मेंशन होगा। तो 6 सब इंटरवल में आपको डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना होगा, एच कैलकुलेट करना होगा। एच का फॉर्मूला क्या है, b माइनस ए अपॉन एन। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0 माइनस 1 का डिफरेंस, या 1 माइनस 0 का डिफरेंस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन, कितने सब इंटरवल में, 6 सब इंटरवल। तो एच क्या बन जाएगा आपका ऑटोमेटिकली 1/6। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली गिवन है, बट अगर गिवन भी नहीं होता है तो भी आपको एच कैसे कैलकुलेट करना है वो समझ में आना चाहिए। ओके, so now we are ready. So in solution, y is this, h is this. Consider a table whose first value is 0, as the 0 is the first point, and last value is 1. Okay, last value is 1, and in between you have to just add the value 1/6. So 0 plus 1/6 is 1/6. 1/6 plus 1/6 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ये 6/6। ओके, 6/6 पे आप इसलिए स्टॉप कर रहे हो क्योंकि 6/6 इज नथिंग बट 1, और आपको कहाँ पे रुकना है, 1 पे ही रुकना है। नाउ करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यूज ऑफ x, जस्ट कैलकुलेट y. व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 0, यू विल गेट y एज 1, और सिमिलरली आप सारे वैल्यूज कैलकुलेट करो। आफ्टर दैट दिस बिकम योर y0, या एक्चुअली इस टेबल के नीचे आप चाहो तो ऐड करो। ओके, y0, y1, y2, y3, okay, y4, y5 and y6। ठीक है, now what is the formula for Simpson, इस स्लाइड में दिखाता हूँ। सिम्पसन्स 3/8 रूल फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू, पहले आपको करना क्या है, y0 एंड yn, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपको ऐड करना है। ओके, देन 2 टाइम्स आई गेस द वैल्यूज विच आर मल्टीपल ऑफ 3, है ना, इन दोनों को छोड़ दो, और इन बिटवीन मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, एक ही है, यही है कि y3, बाकी कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, सो ओनली y3, एंड यहाँ पे आई थिंक 3 टाइम्स आता है, 3 टाइम्स दी रिमेनिंग नंबर y1, y2, y4, y5। चलो देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है। सो y0, y1 वही था, 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 एंड 3 टाइम्स द रिमेनिंग। ठीक है, सो इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज यू विल गेट दिस। ओके, ये इट्स बेटर यहाँ पे आप पहले वो फॉर्मूला ही लिखो। ओके, मैंने डायरेक्टली जंप किया है, बट यहाँ पे अगर आप वो लिखते हो कि 3h/8 इन ब्रैकेट y0 कहाँ तक था, y6 तक था, प्लस 2 टाइम्स y3 प्लस 3 टाइम्स y1, y2, y4, y5। इट्स बेटर इफ यू राइट दिस। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वैल्यूज पुट करो, ये भी कोई रॉन्ग नहीं है, बट देन यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज, एंड देन बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर आंसर एज 0.785395। ओके, एंड नाउ विल टेक द लास्ट एग्जांपल, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं है, आपको मैंने 2 ही वैरायटी एक्सप्लेन की है, एक केस में एच गिवन होता है, एक केस में विदाउट एच रहता है क्वेश्चन, सो कुछ ज़्यादा इसमें वैरायटी नहीं आने वाले। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 रूल, वी हैव टू ऑब्टेन दिस इंटीग्रल। ठीक है, सो इन सोल्यूशन जस्ट कंस्ट्रक्ट अ टेबल 0 to 1, है ना, सेम टेबल है। ठीक है, अभी 1/3 रूल अप्लाई करना है। 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या है, दोनों के लास्ट 2 नंबर्स की एडिशन, 2 टाइम्स इवन एंड 4 टाइम्स रिमेनिंग। ठीक है, तो सारे वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द आंसर एज 0.6931। 3/8 का कंसिडर करो, उसमें क्या है, 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 एंड 3 टाइम्स रिमेनिंग, तो सारे वैल्यूज पुट करो और यहाँ से कैलकुलेट करो 0.6931। आप देखो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इन दोनों मेथड में यू विल गेट द सेम आंसर और द एग्जैक्ट आंसर। ओके, 0.6931 एंड 0.6931। ठीक है, बट समटाइम्स दिस वैल्यू मे डिफर, इट्स नॉट लाइक दैट कि हमेशा इन दोनों से आंसर आपको सेम ही मिलेगा, बट समटाइम्स दिस वैल्यू में डिफर फ्रॉम ईच अदर। एंड हाँ, अभी आपका क्वेश्चन होगा कि फिर कौन सा अप्रोच ज़्यादा, सिम्पसन से आपको और मतलब मोर एक्यूरेट आंसर आ जाता है। ओके, उसमें भी सिम्पसन्स 3/8 से यू विल गेट द मोर एक्यूरेट रिजल्ट। ओके, एज कम्पेयर टू दिस सिम्पसन्स 1/3 एंड ट्रापेजॉइडल रूल। ओके, बट उसमें भी क्या है, आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरवल से डिवाइड करते हो, मतलब अभी मैंने 6 इंटरवल से डिवाइड किया है, अगर आप ये काउंट 100 लेते हो ना तो वो और भी एक्यूरेट होगा। तो जितने इंटरवल्स आप इंक्रीज करोगे ना उतना एक्यूरेट आपको वहाँ पे आंसर मिल जाता है। ठीक है, दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ओके, सो जस्ट लेट मी टेक सम डाउट्स। ओके, इज देयर एनी डाउट्स ऑन दिस पार्ट? ये इजी टॉपिक है न्यूमेरिकल, ऑलरेडी ये यूनिटी इजी है, जिसमें कुछ हाई लेवल का मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, बस न्यूमेरिकल मेथड से उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। इज देयर एनी डाउट? Is there any doubt on this part? कुछ डाउट्स है? ओके, सो
ओके, सो नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट। ओके, तो यहाँ पे ही आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू मूव टू द लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर अंडर दिस यूनिट, एंड विच इज numerical solution of ordinary differential equation. So today I just introduce this part, and then we'll start the examples from next lecture. ओके, आप देखो, आप मतलब ये यूनिट 3 आप कैसे लर्न करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 3 आपका चल रहा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया है, अपने फंक्शन मतलब अप्रोक्सीमेट फंक्शन कैलकुलेट किया है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट फंक्शन कैलकुलेट किया है फ्रॉम द टैबुलेटेड डाटा। टैबुलेटेड डाटा का आपको मीनिंग अभी पता है, ठीक है। सेकंड केस में आपने क्या किया, मतलब अभी आपने इस टाइप का इंटीग्रल सॉल्व किया है, ओके, यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। ये पूरे टॉपिक में एट द न्यूमेरिकल मेथड्स ही है, यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड। नाउ द थर्ड पार्ट, ओके, नाउ हियर यू हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, आपने डेरिवेटिव भी लर्न किया, इंटीग्रेशन यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पार्ट क्या आने वाला था, डेरिवेटिव और द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग दिस न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा ले रहे हो, ओके, जस्ट कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। ओके, सो अंडर दिस टॉपिक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फिक्स करें, ओके, वी जस्ट कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री differential equation, first order and first degree differential equation means a differential equation of this type। और आपका टारगेट क्या है, आपको इस differential equation का solution कैलकुलेट करना है। बट फिर से वही लॉजिक, ओके, आप डायरेक्टली y नहीं कैलकुलेट करने वाले हो कहीं पे भी, ओके, कहीं पे भी आगे जाकर आपको डायरेक्ट y नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म मोर नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ केस में 100,000, ओके, उतने अगर आप स्टेप्स परफॉर्म करते हो तब जाके आपको वो सोल्यूशन मिलता है। बट एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, या मैनुअली वो कैलकुलेशन करना फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, ओके, अंडर दिस टॉपिक सोल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दैट एग्जैक्ट वाई, ओके, वाई कैलकुलेट करने से अच्छा आप क्या करो, आप बस वाई एट सर्टन पॉइंट कैलकुलेट करो, दैट इज अवर टारगेट, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्योंकि ये मेथड्स हमें बस लर्न करने, ओके, एट द एंड मेथड का रोल क्या है, आपको लास्ट में जाकर सॉल्यूशन मिलता है, वाई मिलता है, बट वो पार्ट आप मैनुअली नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए या कंप्यूटर पे आपको करना होगा थ्रू दी प्रोग्रामिंग, क्योंकि उसमें मोर नंबर ऑफ स्टेप्स आपको चाहिए, मे बी 1000 2000, उतने स्टेप्स के बाद आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलता है, ओके। फिर वो चीज़ वो कैलकुलेशन मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दैट होल सोल्यूशन, आप क्या करो, कैलकुलेट दैट सोल्यूशन मतलब वाई एट सर्टन पॉइंट, ठीक है, ये आप कर सकते हो इन बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे सो इन दिस लास्ट टॉपिक बेसिकली यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, स्टेटमेंट पे फोकस करो, हियर यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बट एट सर्टन पॉइंट। मतलब मैं अगर बोलता हूँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट मुझे क्या करना है, मुझे ये सॉल्यूशन नहीं कैलकुलेट करना, मुझे y कैलकुलेट करना है एट सर्टन पॉइंट से 1.2, तो मेरा आंसर क्या होगा 1.2 स्क्वायर, ये मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। विदाउट दिस सॉल्यूशन आपके पास डायरेक्ट y एट 1.2 आ जाएगा। सो हियर वी डोंट नो व्हाट इज दैट सॉल्यूशन, बट स्टिल यू कैन फाइंड दैट सॉल्यूशन एट सर्टन पॉइंट, ओके, दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस लास्ट टॉपिक। This is the last topic under this third unit. So in this chapter we will learn the different numerical methods to find the solution of first order, okay, ordinary differential equation of the type dy by dx is equal to f of x y, okay। और अभी क्या अभी आपको न्यूमेरिकल सोल्यूशन मतलब न्यूमेरिकल मेथड से सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, बट आपको पता है जब भी आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, सोल्यूशन में आपको प्लस से ऐड करना पड़ता है, मीन्स दैट सोल्यूशन ऑलवेज कंटेन वन ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो जस्ट टू अवॉइड दिस आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि सी अगर ऐड होता है तो उस केस में कभी भी आपको न्यूमेरिकल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज सी इज ऑलरेडी इनफाइनाइट, सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट, सो दैट सी टेक्स इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, ठीक है। सो इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मतलब सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, ये कभी न्यूमेरिकल से पॉसिबल होता नहीं, ओके। तो जस्ट टू अवॉइड दिस सी, हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आपके पास एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, and you know the role of this initial condition. From this initial condition you can find the value of c, यहाँ से आपको c भी मिल जाता है, ठीक है। So just to avoid this arbitrary constant, in every example one initial condition is given,
मतलब ऐसे कुछ गिवन होगा कि y at 2 इज इक्वल टू 4, मतलब आपको एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, आपको एक तो वैल्यू पता होगी कि y at 2 या फंक्शन at 2 टेक्स वैल्यू 4, ओके, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इनिशियल कंडीशन। तो सारे एग्जांपल में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा एंड विद वन इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, तब जाके सो दिस आर द रेस्ट्रिक्शंस और दिस आर द कंडीशंस फॉर द न्यूमेरिकल मेथड्स टू find the solution of ordinary differential equation. Okay, and now in our syllabus there are 3 methods. Okay, book में और भी बहुत सारे methods हैं, but as far as our syllabus is concerned there will be, अगर आप चेक कर दे तो उसमें मतलब और भी 2-3 methods हैं with this, ठीक है, but as far as exam point of view, okay, these methods are not that much important, या जनरली भी आप इन्हीं मेथड पे वर्कआउट करते हो, ठीक है। तो so from those 6 to 7 methods, okay, as far as our syllabus is concerned, we will focus on only these 3 methods: Euler's method, modified Euler's method, and Runge-Kutta method of 4th order, ठीक है, that is our syllabus.